Hello everyone. My name is Pranay Sharma and topic that we'll be considering today is polynomials. This is somewhat similar to the topic that we did discuss in 8th grade, but this is for ninth grade. And this particular topic gives you a feel of what polynomials are. It will be a reviving session with respect to your terminologies. और इसमें हम देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है along with factorization. तो पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं देखते हैं कि सर 2/x³ plus x square. Is it a polynomial? No, it is an algebraic expression. What is an algebraic expression? Suppose we have a term, right? When this term is associated with another term, so this will give birth to an algebraic expression, right? However, not all algebraic expressions are polynomials because in order to have a qualified polynomial, you need to follow two rules. First is power of variable should be a whole number. Power should be a whole number. Rule number two is division is not allowed. Now, how will be, seeing this that division is not allowed? Let us have a look here. 2/x³, right? This division is not allowed according to rule number second. So it violates rule number second. That is why it does not qualify. It cannot be called as a polynomial. It does not qualify the very basic rules, right? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x⁻³ लिख सकते हैं. पावर भी तो होल नंबर नहीं है, राइट? पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल शुड बी होल नंबर तो नहीं है ये. तो ये जो रूल सेकंड है ये इसी का ही तो एक तरह का रूप है, प्रारूप है, ठीक है? तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन सारे पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं. सर ये एक पॉलिनोमियल है क्या? बिल्कुल है, ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है. दिस इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स. तो पॉलिनोमियल को डिनोट कहां से करते हैं? डेनोटेशन पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स. क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल डिफाइंड है. एस ऑफ वाई अगर वाई के अंदर डिफाइंड है तो y² + 4y + 1, right? Like this. Let us move back to our original identity, right? Classification of polynomials based on degree. अगर डिग्री है तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट. देखो कैसे बताया है इसने जीरो पॉलिनोमियल को. हाँ. Why it is not why it is not allowing me to annotate? I've shared my entire screen. Just hold on for a second. It is not allowing me to write anything here. Okay, what best we can do is we'll be checking for another possibility for this, right? So let me have a ball pen. Constant means suppose we have 5. So 5 can be rewritten as 5x⁻0. Anything that raised to power 0 is what? 1, right? Except 0 to the power 0. Linear means what? Degree is 1. Let us say 2x. Quadratic means degree 2. X is square plus 1. Cubic means degree 3. Based on number of terms, this is a binomial. If we have 3 terms, trinomial. If we have 1 term, monomial, like 2x, right? So this is something that we have. Zeros of a polynomial is the value of x for which a polynomial becomes equals to 0. Now let us have a look here, right? Start and we'll move to OneNote. So what was something that they did ask? 2x - 8. What exactly the zero of this polynomial? 2x - 8. So whenever this is given to you, we will be following an algorithm. क्या करना है आपको? सबसे पहले p of x को 0 के इक्वल करना है. p of x कितना है आपका? आपको ये पुट करना है p of x. सेकेंड, सॉल्व फॉर x, ठीक है. तो कैसे करना है? p of x को 0 के इक्वल किया मतलब 2x - 8 इक्वल्स 0, 2x इक्वल्स 8, x इक्वल्स 4. सॉल्व फॉर x नहीं होना चाहिए यहाँ पे. एनी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आप चूज कर रहे हो वो होना चाहिए. यहाँ पे y में भी तो हो सकता है पॉलिनोमियल. x की वैल्यू 4 हुई तो जब x 4 यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरे का आंसर 0 आ जाएगा. दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट? वी कैन फाइंड द वैल्यू of a variable with the help of zero of a polynomial, ठीक है. Number of zeros of polynomial is equal to the degree that the polynomial as zero polynomial. All right, चलो क्या बोलना चाह रहा है ये लीनियर है,
डिग्री 1 है, तो इसलिए इसके पास में एक ही जीरो है। क्वाड्रेटिक होता तो दो जीरो होते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो डिग्री 0 है, उसका तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते अपन। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। एक्स टू द पावर 5, देखते हैं एनोटेट हो रहा है क्या। ओके, इट इज स्टिल नॉट एनोटेटिंग। हाँ, नाउ इट इज एनोटेटिंग, यस। एक्स टू द पावर 5, सो हियर द डिग्री विल बी 5, इसमें डिग्री विल बी 8, एंड इसमें डिग्री विल बी 0। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes. What exactly is to be done here? Px equals x square minus 2 root 2x plus 1. Then p of, acha, value of a polynomial at this particular point will be, let me annotate again. तो p of 2 root 2 will be, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 रूट 2 टाइम्स 2 रूट 2 प्लस 1। दिस विल बी 4 into 2 minus 4 into 2 plus 1. This will go away. Answer is 1. That's it. How simple it is, right? Zero of this polynomial. So what will be the zero of this polynomial? Let us annotate this again. 2x plus 5. This is p of x. When you put p of x equals 0, that means is 2x plus 5 को put equals to 0. So 2x will be -5. So x will be -5/2. अगर आप ये इसको यहाँ रखेंगे तो p of x की वैल्यू 0 आ जाएगी। Factorization and algebraic identities. Remainder theorem. When p of x is divided by g of x, जो है x minus a, तो रिमाइंडर r कैसे दिया जाएगा, p of a से दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा इसका, हम करेंगे। और उसी पे फैक्टर थ्योरम भी बेस्ड है। दिस इज फैक्टर थ्योरम दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज, राइट। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर कहलाता है, किसी भी चीज का। और आप जो a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर लिखते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले, वही रूल्स को यहाँ फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो उसको उस फैक्टर्स में लिख सकते हैं। कैसे, देखो, इसको पॉलिनोमियल में ना समझ के अगर हम एक नंबर की फॉर्म में समझे तो, मैंने बोला कि इधर आते हैं, 18 जो है उसके फैक्टर क्या है, या तो 9 है या 2 है, ठीक है, राइट। तो 18 को मैं 9 into 2 लिख सकता हूँ, फैक्टर हुए ना, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो दिक्कत है। और रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करता है वो हम आगे देखते हैं। चलो, फैक्टराइजेशन करने का एक और तरीका होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोगों को ए इंटू सी करना होता है पहले, और ये बी को ऐसे ब्रेक करना होता है कि पी और क्यू का सम जो है वो तो बी के बराबर है, और पी और क्यू का प्रोडक्ट करे तो वो ए और एक्स के बराबर आ जाए। वही चीज लिखी हुई है। कुछ आइडेंटिटीज है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, राइट, ये वही आइडेंटिटीज है। तो आई वांट यू टू गो थ्रू विथ ऑल द आइडेंटिटीज। द डेरिवेशन इज नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम, एज दिस इज अ ब्रिज कोर्स फॉर दिस। तो चेक करते हैं, चलो। चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। जैसे 18 का फैक्टर, मैं 18 का नहीं, आप इसको ऐसे देखिए, 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 हो सकता है क्योंकि 6/1 इज 6। 6 का फैक्टर 2 हो सकता है क्योंकि 6/2 इज 3। 6 का फैक्टर 3 हो सकता है क्योंकि 6/3 इज 2। 6 का क्या फैक्टर 4 हो सकता है, नॉट कम्प्लीटली 5 नहीं, 6 तो हो सकता है क्योंकि 6/6 इज 1, यस। तो 6 का, तो मतलब ये सब क्या है, फैक्टर से, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है इधर, राइट। वैसे ही ये जो है, अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, -7/3 हो गया ये, राइट। इसको यहाँ पे रख के देख लो क्या 0 आ रहा है क्या। तो दिस विल बी 3 into -7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 प्लस दिस विल बी माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 3, राइट। दिस विल बी कमिंग डाउन टू 9 टाइम्स, राइट। तो क्या रहेगा ये,
-7 into -7 into 7, -7. द आंसर विल बी ऑफ माइनस ओनली। लेकिन 7 into 7 into 7 होता कितना है? 49 into 7। क्यूब कितना होता है 7 का? एलसीएम लेंगे 3 9 का, क्या आएगा? 9 आ गया। तो ये क्या, -343 -49 into 3 कर देंगे अपन, 3 टाइम्स ही क्या है ये। तो कितना है? 27 2 12 13 14। अभी कितना हुआ? माइनस का 343, -का 147। टोटल करेंगे तो कितना हुआ? 0 1 8 9, तो हुआ 4 -490/9। नहीं आया सर, जीरो तो नहीं आया, तो ये इसका जो है फैक्टर नहीं है। ये करके दिखाना है हमें। हमने दे के रखा है x+1/x=√5 दे रखा है, राइट। और इसकी वैल्यू निकालनी है x² + 1/x² की। कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्क्वायर कर दो। तो x+1/x का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल्स कितना हो गया? 5 हो गया। ये हो गया a+b के स्क्वायर से a² + b² +2ab इससे ये कट गया। तो यहाँ क्या बचा? x² + 1/x² + 2 = 5। तो यहाँ से आंसर आया x² + 1/x² = 5 - 2। तो ये हो गया x² + 1/x² इक्वल्स, सॉरी 3। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर लूँ। ठीक है। हाँ, इसको कैसे करेंगे? तो अगर आपने पीछे कुछ आइडेंटिटीज नोट की होंगी, ये आइडेंटिटीज a³ + b³ + c³, और फिफ्थ आइडेंटिटी और एट्थ आइडेंटिटी देख लो, क्योंकि हम ये यूज करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो a+b+c का होल स्क्वायर, विच इज a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab bc ca। सारी वैल्यूज दे रखी है हमें, सिर्फ वैल्यूज रखनी है, और नॉर्मल जो चीज उसने पूछी है वो ट्रांसपोजिशन से हमारे पास में आ जाएगी, राइट। ओके। ओके, let me stop sharing the screen. I think I made some mistake. Yeah, now it is working. ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर ऐसा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।